Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. Short marks in 10 minute series में ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, विच इज़ 12th पार्ट. ओके, सो वीडियो शेयर करने के पहले लाइक शेयर ज़रूर से वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स. ठीक है, मैं काफ़ी कुछ नया लेकर आ रही हूँ. आज लगातार आपको कुछ ना कुछ नया दे रही हूँ फॉर DBT, फॉर गेट, फॉर CSIR, ऑल ऑफ द एग्जाम्स. सो डू subscribe the channel, do hit the bell icon for all the regular updates. Alright, let's begin. काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ज्विटर आयन का. उसके बाद में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अमीनो एसिड है कोई आपके पास में और उसमें अगर कुछ चेंज हुआ है, लाइक अगर मैं उसे ऐसे pH में रख रही हूँ विच इज़ लेस देन PI तो क्या होगा, अगर मोर देन PI में रखा तो क्या होगा. काफ़ी फ्रीक्वेंटली DBT CSIR सब में ऐसा क्वेश्चन आप इनकाउंटर करते हो. तो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है. सबसे पहले ज्विटर आयन को समझते हैं. सो अमीनो एसिड्स आर टिपिकली ड्रॉन ईदर विद नो चार्जेस, ठीक है, और विद अ प्लस एंड माइनस चार्ज. Alright, so when an amino acid contains both a plus and minus charge in the backbone, it is called a Zwitter ion. मतलब कि जब दोनों ions आपके पास में present होंगे, like in this case, so there is a plus charge as well as there is a minus charge. So it is known as Zwitter ion. Okay, but in the backbone it is called Zwitter ion and has an overall neutral charge because of course there is a positive plus negative charge, so it is a net zero. Okay, so it is having a neutral charge on it. The Zwitter ion of an amino acid exists at a pH equal to the isoelectric point. Okay, so here it is existing at a pH which is equal to the isoelectric point, which is known as PI as well. Okay, each amino acid has its own PI value based on the property of the amino acid. तो हर एक अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एट्सेट्रा. उसके बेसिस पे हर एक अमीनो एसिड का PI वैल्यू डिफर करता है, वेरी करता है. एट pH वैल्यू अबव और बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द मॉलिक्यूल विल हैव अ नेट चार्ज विच डिपेंड्स अपॉन द PI वैल्यू. मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ कि जो भी किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का PI वैल्यू है उससे ज़्यादा या कम pH वैल्यू पे वो जो मॉलिक्यूल है उस पर एक पर्टिकुलर चार्ज होगा जो कि डिपेंड करेगा उसके PI वैल्यू पे, साथ ही साथ उस सॉल्यूशन पे जिसमें वो अमीनो एसिड मिल रहा है. ठीक है, सबसे पहला केस देखते हैं जहाँ पे pH इज़ लेस देन PI. द pH ऑफ द सोल्यूशन इन विच द अमीनो एसिड इज केप्ट इज़ लेस देन PI ऑफ द अमीनो एसिड. देन व्हाट विल हैपन. तो जब pH कम है PI से तो क्या होगा, वहाँ पे pH कम है मतलब acidic pH. ठीक है, and when there is acidic pH that means there are more number of H plus ions in the solution. Okay, so there is excess number of H plus ions in the solution. The excess H plus ions are attracted to the negatively charged carboxylate ion resulting in its protonation. Okay, so these H plus ion will bind to this carboxylate ion and will result in the protonation of this particular amino acid. The carbohydrate ion is protonated, the carboxylate ion is protonated, making it neutral. उसके कारण वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, leaving only a positive charge on the amine group. Overall, the amino acid will have a charge of +1. This is not correct, it's only +1. Okay, so you can see here. So when the pH is low, at low pH, what is happening? H plus is present in the solution. सो इट विल बाइंड विद द, अभी तक यहाँ पे COO माइनस था, ये H प्लस गया और इस COO माइनस के साथ में इंटरैक्ट किया और COOH बना लिया. अब यहाँ पे सिर्फ इसका जो चार्ज है ये वाला ये बचा रह जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे इट इज़ हैविंग अ 1 लाइक +1, मतलब इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ व्हेन द pH इज मोर देन the PI of the amino acid, then what will happen? So when pH is greater than the PI, there is an excess amount of OH ions in the solution. Okay, so now this OH ions are attracted to the positively charged amine group. So because of the nature कि positive negative attract करते हैं, क्योंकि ये negatively charged ions हैं तो ये किधर जाएंगे, ये positively charged ions के पास में जाएंगे, अमीन ग्रुप के साथ में इंटरैक्ट करेंगे. उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो H प्लस आयन है वो आपका रिमूव हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आपका ओके, सो व्हाट यू कैन सी हेयर इज सी. So all right, so at high pH what it will does, what it will exactly do, H2O. Okay,
तो H प्लस आयन यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे NH3+ था, ठीक है, और pH क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से आपका H+ क्योंकि pH ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, H+ यहाँ से आपका रिमूव होगा, H+ यहाँ से आपका रिमूव होगा तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, COOH से निकल के। अमीन ग्रुप हैज़ अ न्यूट्रल चार्ज लिविंग ओनली अ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो सिर्फ कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे आपका एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और उसके कारण जो आपका एक नेट चार्ज बचेगा वो रहेगा कितना, -1 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब लो pH है तो सिर्फ ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज बचा, और जब हाई pH पे रखा हमने उसको तो सिर्फ ये वाला आपका सिनेरियो बचा, मतलब कि -1 उस पर चार्ज रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से अब पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ। बहुत सिंपल सी बात है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज, एंड नेगेटिवली चार्ज किस तरफ मूव करेगा। कैथोड इज negative side, anode is positive side, so this will move towards what, this will move towards cathode and this will move towards anode, ठीक है। क्रॉस चेक कीजिए और अपना सही आंसर दीजिए। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू आर लाइकिंग द सेशंस। ऑल्सो लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर से और सब्सक्राइब चैनल को। ओके, बाय एवरीवन।